دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس داتا دربار سے شروع ہو کر مرکز فیضان مدینہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کا آغاز بعد ظہر داتا دربار سے ہوا، جس کی قیادت رکن شورا حاجی یافور رضا قادری نے کی۔ جلوس میں بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کے نعروں سے معطر رہی۔ جلوس بھاٹی چوک ناصر باغ سے ہوتا ہوا استنبول چوک پہنچا، جس کے بعد پرانی انارکلی جین مندر فیروز پور روڈ سے ہوتا ہوا کرتبہ چوک مزنگ اشرا سے مسلم ٹاؤن پہنچا۔ جلوس کینال روڈ سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے ہوتا ہوا صوبائی مرکزی فیضان مدینہ پر اختتام پذیر ہوا۔ رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملک کھوکر بھی شریک ہوئے۔ ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یا اللہ پاک جشن ولادت کی خوشیاں منانا ہمارا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، ان کے فرمان اور ان کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ دعوت اسلامی یہ شو کر رہی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے اور ہم کتنے والہانہ طریقے کے ساتھ دعوت اسلامی حضور کی پیدائش کا دن مناتی ہے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی یافور رضا قادری نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ جو نور لے کر آئے قرآن مجید اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈسپلن اور ایک بہترین مہذب زندگی گزارے، معاشرے کے اندر اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر جگہ جگہ شرکا پر گل پاشی کی گئی۔ پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر لاہور میں عشق رسول کی بہار ریلوے گراؤنڈ گڑیشاؤں سے مولانا حفیظ الرحمان کی سربراہی میں عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ گلپاشی اور گھوڑوں کے رقص سے استقبال کیا گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے فضا معطر ہو گئی۔ جلوس میں تاجر رہنما خلیفہ عثمان یعقوب، چیئرمین رفیق خان، راجہ زاہد، خلیفہ انجم اور سماجی شخصیت اظہر فاروقی سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی کا کہنا تھا کہ میلاد النبی کا یہ دن ہمیں سیرت طیبہ اپنانے اور امن و محبت کا پیغام عام کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج کا جو دن ہے اس کی نسبت ہے حضور صدر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، چونکہ حضور کی آمد ہے 12 ربیع الاول کو، اور ہر مسلمان کلمہ جو ہے حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی آل سے محبت کرنے والا، وہ آج خوش ہے اور وہ اتنی خوشیاں منا رہا ہے اور آج کا دن ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جلوس کے راستے میں عقیدت مندوں نے مختلف پوائنٹس پر شاندار استقبال کیا۔ شرکا پر گلپاشی کی گئی۔ فضا مسلسل نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونجتی رہی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علامہ اقبال روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین رانا ٹیپو کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹاؤن شپ مین مارکیٹ سے جنوبی لاہور کا خصوصی مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس مسجد مدینہ سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ راستوں میں لنگر، سبیلوں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹاؤن شپ مین مارکیٹ میں جنوبی لاہور کا خصوصی مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس مسجد مدینہ سے برآمد ہو کر ٹاؤن شپ کی مختلف گلیوں اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد فیضان مدینہ تک پہنچا۔ لال سکول سیکٹر 16 بلاک سے گزرا، جہاں ٹاؤن شپ کے رہائشیوں نے جلوس کا بھرپور استقبال کیا۔ جلوس میں میلاد کمیٹی ٹاؤن شپ کے صدر اختر خان نیازی سمیت مختلف سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیدل افراد کے ساتھ موٹر سائیکل اور گاڑی سوار بھی جلوس کا حصہ بنے۔ شرکا نے سبز جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور درود و سلام، نعت خوانی اور ذکر و اذکار سے فضا کو مطر کیے رکھا۔ آج مرکزی میلاد کمیٹی جنوب لاہور کا سب سے عظیم، جیسا آپ نے بتایا، جلوس نکالا گیا ہے۔ ہماری جامعہ مسجد نور کے تمام انتظامیہ کھڑی ہے، ہمارے مفتی صاحب اشرف صاحب کھڑے ہیں، خالد صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے پورے جلوس کا استقبال کیا۔ یہاں لنگر تقسیم کیا گیا اور
हमारा ईमान है कि आग सल्लम की वलादत से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। कायनात आलम में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक की जो है वो आज के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की सूरत में और दुनिया में तशरीफ़ आवरी की सूरत में हमें मुयस्सर आई। क्यों ना हम खुशियाँ मनाएं। ये खुशियाँ मनाना हमारा फितरी हक भी है, अखलाकी हक भी है, इस्लामी हक भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले टाउनशिप ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जुलूस निकाला। जुलूस के रास्तों में लंगर, नजरो न्याज और सबीलों का सिलसिला भी जारी रहा। टाउनशिप और जुलूस के मुकर्रर रूट्स पर खसूसी इंतजामात किए गए। अकीदतमंदों ने भरपूर जोशो जज्बे के साथ जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया। कैमरामैन एहसान कादिर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। जामिया उर्वतुल वुस्का की ज़ेर-ए-तमाम हफ्ता वहादत और जश्न मिलाद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से वहादत उम्मत रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सरबराह तहरीक बेदारी अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने की। रैली में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शुरका ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, बेदारी और कुरान से वाबस्तगी के पैगाम को उजागर किया। हफ्ता वहदत और जश्न मिलाद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जामिया उर्वतुल वुस्का के ज़ेरे एहतमाम वहदत उम्मत रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने की, जबकि अवाम की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर अल्लामा सैयद जवाद नकवी का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि 2 अरब मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद उम्मत कुरान के तकाज़ों के मुताबिक अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। उम्मत के फिक्री और तालीमी मराकज को कुरान मजीद को अपने निजाम का मरकज बनाना होगा। वो हस्ती जिसके तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन दिया है, हमें कुरान का हदिया दिया है, हमें जलालत मुबीन से निकाल कर हिदायत अता की है और हमें तफरके दुश्मनी और अदावतों से निकाल कर इत्तेहाद व वहदत की नेमत अता की है और हमें अखवान बनाया है, हमें भाई बनाया है, हमें उम्मत वाहिदा बनाया है। इन तमाम नेमतों का शुक्र हम अल्लाह की बारगाह में अदा करें, उसके फरामीन की इताअत करके। रैली के इख्तिताम पर अल्लामा जवाद नकवी ने मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर भर में जश्न ईद मिलाद के मनाने में मसरूफ इस्लामपुरा में कदीमी जुलूस का आगाज़। ट्रॉलियों को मुख्तलिफ अंदाज में सजाकर इस्लामपुरा बाजार के एतराफ चक्कर लगाया गया। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। आज ही देखें भरपूर अंदाज में जो है वो सेलिब्रेशन जारी है और इस्लामपुरा में कदीमी जुलूस जो है वो ट्रालियों का होता है, जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है और उनको पूरे इस्लामपुरा बाज़ार में जो है वो घुमाया जाता है और वहाँ से फिर उनको इनामात भी दिए जाते हैं। लेकिन इस्लामपुरा के टोटल जो रास्ता है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने लंगर के तौर पर लगाए जाते हैं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये बारबेक्यू का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है और रश अगर मेरा कैमरामैन भट्टी आपको दिखाए तो आप रश यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा है। बारबेक्यू जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और लोगों की बड़ी लाइन यहाँ पर मौजूद है बारबेक्यू लेने के लिए। बाहर रश लगा हुआ है, लोग जो हैं वो भरपूर अंदाज में पुरजोश हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे हो आप? इधर आओ। अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात है? लोगों का रश बड़ा नज़र आ रहा है, हर तरफ खाने चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। बस ये जी, हम 12 रबीउल अव्वल की खुशी में जो है लोगों को लंगर तकसीम कर रहे हैं, लोगों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, उसकी खुशी में जो है। बिल्कुल जी, खुशियाँ बांट रहे हैं। आप बताएं जी, इधर आए ज़रा आगे, क्या देख रहे हैं? लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पर। कितना जोशो जज्बा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा लोगों का। जोशो जज्बा तो आगे नहीं ख़त्म हो रहा है। इतनी गर्मी होने के बावजूद लाइव बारबेक्यू चल रहा है और आपके सामने लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोग भी हमसे लंगर लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग भी उसी तरह से लंगर लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। भाई कैसे हैं आप? ये देखें पूरे पसीने से गीले हुए हैं और लोगों को लंगर खिला रहे हैं। क्या लंगर के ऐसा क्या है? सर ये लंगर देने के लिए मैं स्पेशल सऊदीया से 3 दिन पहले पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, ये मेरा मान होता है कि मैं लंगर अपने हाथ से देना है। मैं हर साल सऊदीया से, दुबई से, कतर से, जहाँ जिस कंट्री में मैं स्पेशल पाकिस्तान आता हूँ, लंगर दे के फिर मैं जाता हूँ। लंगर में क्या क्या है? सर लंगर में चिकन है, टिक्की है और सारे चिकन के पीस मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हम देते हैं। जो खुद खाते हैं वो लोगों को खिलाते हैं। ये हमारा तकवा है कि जो भाईजान हम खुद अपने ज़ात के लिए करेंगे वो अपने बहन भाइयों के लिए भी होगा, सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा। और लिहाजा हम लगे हुए हैं अल्लाह की राह में। बस हमसे दुआ है, आपसे है कि अल्लाह पाक इसको कबूल करे। जरा दिखाएं तो सही, ये देखें अगर आप लंगर, तो यहाँ पर आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो बारबेक्यू लगाया जा रहा है। कदीमी जुलूस निकलता है यहाँ से ट्रालियों का,
وہ بھی ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کتنی کی ٹرالیاں یہاں سے نکلتی ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر سے بہت زیادہ ٹرالیاں نکلتی ہیں, کم سے کم میکسیمم 20 سے 25 ٹرالیاں نکلتی ہیں. ہر بندہ اپنے انداز میں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے, ہر بندہ لنگر تقسیم کا, ہمارا بھی ماشاءاللہ باربیکیو کا سسٹم, پھر اس کے بعد کیک 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹے جاتے ہیں, باربیکیو تیار کیا جاتا ہے, حلیم تیار کی جا رہی ہے, متنجن تیار کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ان کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ توقیر اکرم آگاہ کرنے کے لیے. سینئر لیگی رہنما ملک ابرار کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کی تقریب سجائی گئی. سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں معروف کاروباری شخصیت ڈیولپر میاں محسن نے شرکت کی. صوبان منیر, میاں قیصر, بیرسٹر سلمان صفدر, میاں محمد آصف, میاں عاصم, ملک ابرار سمیت دیگر کاروباری, سماجی اور سیاسی شخصیات شریک ہوئیں. اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. سینئر لیگی رہنما ملک ابرار کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن اور محبت کا پیغام بانٹنے کا دن ہے. میاں محسن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج عید کا دن ہے, عید کا سمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. ہمارا بات, جان, مال, ہر چیز ان پہ قربان ہے بھائی. میں میاں محسن صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ملک ابرار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جنہوں نے شادرے میں آج ہمیں ویلکم کیا ہے اور پورے علاقے کو سجایا ہے اور بہترین محفل میلاد کا انتظام کیا. انہوں نے خالی ہمیں ویلکم نہیں کیا, پوری عوام کو لنگر کھلا بانٹا. ملک صاحب جیسا بندہ اس علاقے میں نہیں ہے. تقریب کے شرکا نے ملک کی ترقی و خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی. جمیل الیاس, سٹی 42. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہربنس پورہ عامر ٹاؤن میں چودھری محمد سلیم کی سربراہی میں جلوس نکالا گیا. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ہربنس پورہ کے علاقے عامر ٹاؤن میں چودھری محمد سلیم کی سربراہی میں جلوس نکالا گیا. جلوس میں علامہ اقبال چشتی, چودھری محمد سلیم, عبدالرافع, عبدالواسع, عبدالسمیع, حاجی شوکت علی بھٹی, چودھری بشیر احمد, رانا محمد افضل نے شرکت کی. عمر فاروق, بشیر حسین, عمر فاروق سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد جلوس کا حصہ بنی. چیئرمین ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن حاجی محمد یاسر بٹ کی جانب سے محفل میلاد اور فوڈ اسٹریٹ کا اہتمام. تقریب میں صدر آل لاہور ریئل ٹیلرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ میاں مبشر سعید, ایاز بٹ, خواجہ جہانزیب اکرم سمیت کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے چیئرمین ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن حاجی محمد یاسر بٹ کی جانب سے محفل میلاد اور فوڈ اسٹریٹ کا اہتمام ماڈل ٹاؤن میں کیا گیا. تقریب میں صدر آل لاہور ریٹیلر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ میاں مبشر سعید نے خصوصی شرکت کی. نائب صدر انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ عمران میمن کی جانب سے نیسپاک سوسائٹی میں محفل میلاد کا انعقاد. تقریب میں صدر اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو, جنرل سیکرٹری ظفر, سینئر نائب صدر شیخ جعفر نے خصوصی شرکت کی. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے شہر کی تاجر برادری کی جانب سے تقریبات کا سلسلہ جاری رہا. نائب صدر انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ عمران میمن کی جانب سے محفل میلاد مصطفی کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا اہتمام نیسپاک سوسائٹی میں کیا گیا. تقریب میں صدر اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو, جنرل سیکرٹری اور دیگر شریک تھے. چیئرمین اعظم کلاتھ مارکیٹ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. 100 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا. تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ملک سہیل اور آغا شاہ حسین قزلباش نے بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی. تاجر رہنماؤں ذیشان سہیل ملک, ملک فرید, ملک ولید, حاجی رفیق اور چودھری ارشوان سمیت تاجر برادری نے شرکت کی. تقریب کے موقع پر نعت خوانی اور درود السلام کے ساتھ جشن میلاد النبی کی خوشیاں بھی منائی گئیں. اس موقع پر آغا شاہ حسین قزلباش نے کہا کہ کائنات کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے, جسے شہر بھر میں بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر بھر میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا. نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے. کوٹ لکھپت میں وائٹ پیلس بینکویٹ ہال کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. نعت خواں حضرات عثمان سیالوی, علی رضا سیالوی اور علماء کرام نے گلہائے عقیدت پیش کیے. قاری عمر سلطان سیالوی کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. سینئر لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کی جانب سے حلقہ N 127 کے مرکزی دفتر میں عید میلاد النبی کے موقع پر ایک روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا. محفل میں بی بی وڈیری MPA, رشدہ لودھی ایڈوکیٹ MPA, فاطمہ
फातिमा सलाहुद्दीन MPA समेत दीगर खवातीन शरीक हुई। नात ख्वां ज़ारा फराज, हिना हसन और आपा ताहिरा अजीज ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि शुरका ने इज्तमाई तौर पर दुरूद सलाम पेश किया। लाहौर के एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद लतीफ़ की जानिब से मिलादुन्नबी की रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉ अफसरान, वकला, साबिक जजेस और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने दुरूद सलाम और नाते रसूल मकबूल की सआदत हासिल की। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से फाउंटेन हाउस में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल के दौरान शुरका ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी का इजहार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जश्न विलादत बासआदत की मुनासिबत से केक भी काटा गया। SOS विलेज में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब और महफिल मिलाद का एहतमाम भी किया गया। SOS विलेज में ज़ेरे कफालत बच्चों ने कुरान ख्वानी की और हुजूर की बारगाह अकीदत में नातों का हदिया पेश किया। शुरका ने बच्चों की जानिब से पेश किए गए नातों के नजराने को खूब सराहा। मनावा में मुनक़िदा जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से महफिल मिलाद में आशिकाने रसूल के लिए लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके की समाजी शख्सियात नूर जमान खान समेत आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद मौजूद थी। महफिल के अख्ताम पर 100 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। आशिकाने रसूल के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। जश्न विलादत बासआदत के मौके पर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके ज़ेरे इलाज बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। वफ्द ने ईद मिलादुन्नबी की खुशियां बीमार और जरूरतमंद बच्चों के साथ बांट दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां नईम की जानिब से दस्तरखान का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA सैफुल मलूक खोखर और चौधरी शहबाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका की लाहौरी नाश्ते, बोंग पाए, चने हलवा और कश्मीरी चाय से तवाज़े की गई। इस मौके पर 100 पाउंड वजनी केक काटा गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सदर बाजार कैंट में मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा काउंसिल की जानिब से आशिकाने रसूल के लिए खुसूसी नाश्ते का एहतमाम किया गया। तकरीब में अवाम की तवाज़ो हलवा पूरी से की गई। इस मौके पर पाकिस्तान, पाक फौज और अलहाज मंजूर अहमद गौरी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तकरीब में रजी खान काउंसलर, फारूक अहमद गौरी, चांद भाई समेत दीगर अफराद भी शरीक हुए। शहर भर में जश्न ईद मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आशिकाने रसूल की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया। मछली से भी शुरका की तवाज़ो की गई। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, उशाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से समनाबाद में वसी और अरीज़ लंगर का एहतमाम जो है वो किया गया है। वसी लंगर का जो है वो एहतमाम किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर तमाम अहले लाहौर और तमाम वो उशाक रसूल जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत के मौके पर ना सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ खुशियाँ बाँट रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लंगर का एहतमाम करने वाले उस्मान भाई। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर वो क्या जज्बा है, और जज्बा तो ज़ाहिर सी बात है कि गुलामान रसूल जो है वो हर वक्त आपके लिए अपना सर तन मन जो है वो पेश करने के लिए हम वक्त जो है वो तैयार रहते हैं। आपकी जानिब से ये जो जज्बा है, इस हवाले से जो कैफियत हैं और इस हवाले से जो सरशारी की इस वक्त जो कैफियत है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और अपने लंगर के हवाले से जहाँ पर एहतमाम आप करते हैं हर साल, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल की तरह आपने इस साल भी हमें वक्त दिया। बुनियादी तौर पे अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि मैं जो तुम्हें नेमतें दूँ तो उसका चर्चा जो है वो खुल के करो। तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन से बढ़ के नेमत कुबरा जो है ना पहली उम्मतों को नसीब हुई ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। इस तरह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते, वो भी इस नेमत में, इस दस्तरखान में हम लोगों के साथ बैठ के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर भी करें और हम मिलकर तमाम उम्मत के गुराबा के साथ, मसाकीन के साथ ये खुशियों के लम्हात हम गुजारें भी। आप क्या कहेंगे इस मुबारक साथ के हवाले से, क्या कैफियत हैं, क्या जज्बात हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और विलादत की खुशी में हर साल की तरह आज भी इसी तरह बल्कि उस्मान भाई भी और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जाता है। और इस जगह का भी यही मकसद है कि लोगों को अच्छे से अच्छा हम लंगर तकसीम करके ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मुस्तफ़ीद हो, मुझे आप बताइएगा कि आपके क्या कैफियत हैं, क्या जज्बात? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि हम जो है वो अशरफुल मखलूक़ात की जो है वो खिदमत कर सके। अल्लाह ताला का ये करम है हम पे और बिलखसूस सरकार का करम है कि उनके सदक़े ही जो है सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए।
जश्न ईद मिलाद नबी का मरकजी जुलूस दिल्ली दरवाजे से भाटी गेट पहुंचकर अख्ताम पजीर। भाटी गेट के मरकजी दरवाजे को खूबसूरती से सजाया गया। शुरका पर गुलपाशी भी की गई। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन। जश्न मिलाद का जो जुलूस है अंदरून दिल्ली गेट से जो आज उसका आगाज़ हुआ था, अब वो भाटी गेट आकर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। हज़ारों की तादाद में जो आशिकान रसूल हैं उन्होंने इस जुलूस में जो है वो शिरकत की। जुलूस में घोड़े बग्गियाँ के अलावा जो है वो आशिकान रसूल की कसीर तादाद जो है वो शरीक रही। इस जुलूस के जो रूह रवां हैं कश्मीरी साहब, अंदरून शहर की एक मारूफ शख्सियत है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो पूरे मुसलमान इसमें पूरा जोश और जज्बे के साथ, बलवे के साथ अपना हिस्सा डालते हैं और इस जुलूस को हर साल जो इसमें मज़ीद रौनक बढ़ती जा रही है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारी बात पूरी कोशिश है जो जुलूस इसी तरह रवा दवा चलता रहे, जब तक ये क़यामत होगी ये जुलूस इसी तरह चलता रहे। जी बिल्कुल, जब तक क़यामत रहेगी नबी का जश्न, नबी की आमद का जश्न वो है वो लाहौर ये जो ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मदनी आगाह करने के लिए। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन बहर अकरम उर्फ काला पहलवान की जानिब से बागबानपुरा में महफिल मिलाद नबी का एहतमाम किया गया। बागबानपुरा में काला पहलवान की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुनक्किद की गई। महर वक्कास, महर शहजाद, महर मजहर समेत दीगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। नात ख्वां इरफान हैदरी ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महर अकरम और महर वक्कास का कहना था कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न बाइसे बरकत है। आज बड़ा कीमती दिन है। मैं बाम कहना चाहना जश्न मनाओ, मिलाद कराओ, लंगर वंडो, किन्ना ही वंडा है कांडे। देखो अभी नबी पाक दे मनने वाले उम्मती ही हां। शुक्र है जी मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। हर साल जश्न मनाते हैं। आज भी इंशाल्लाह जितनी देर जिंदगी है इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। बाल साहब शुरू से करा रहे हैं, हम भी उनके नक्शे कदम में चल के करा रहे हैं, इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। महफिल में काला पहलवान के शागिर्दों के साथ साथ दीगर पहलवानों ने भी शिरकत की। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में नूरी बिल्डिंग से खालिद खान की जानिब से जुलूस बरामद किया गया। गढ़ीशाव में जामे मस्जिद रेलवे पावर हाउस से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद हुआ, जबकि DHA फेज 8 से रैली का एहतमाम किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नूरी बिल्डिंग से खालिद खान की जानिब से जुलूस बरामद किया गया। जुलूस में शामिल बैंड की जानिब से कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के मॉडल्स भी जुलूस का हिस्सा रहे। जुलूस के रास्तों पर पानी और जूस की सबीनें कायम की गईं। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब अहमद और खालिद खान ने ईद मिलादुन्नबी का केक काटा। गढ़ी शाहू में जामे मस्जिद रेलवे पावर हाउस से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में नासिर जट, अदील जट, मिर्जा सदाम, राना अंस, हनीफ खान, राना वकास समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में सब्ज परचम थाम रखे थे। फिजा दुरूदो सलाम से मुअत्तर रही। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। DHA फेज 8 में सीनियर लीगी रहनुमा राव शहाबुद्दीन की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के हवाले से रैली का एहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राव शहाबुद्दीन ने रैली की क़यादत की। शुरका ने सब्ज झंडे उठा रखे थे। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अजीजुर रहमान चंद की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद और नजर न्याज का एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए और नात ख्वानी और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में संत नगर में अजीमुश्शान जुलूस का इनेकाद किया गया। जामे मस्जिद फैज खजूर वाली मस्जिद संत नगर से निकाले गए जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गलियां दुरूद सलाम और नाते रसूल की सदाओं से गूंज उठी। छोटे बड़े बुजुर्ग और नौजवान सभी ने भरपूर अकीदत और मोहब्बत के साथ जुलूस में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का दौरा, नए तौसीशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना, मुसाफिरों के लिए नए इंतजाम का जायजा। नए इमिग्रेशन एरिया में लाइनों की तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि वसी इजाफी एरिया खोलना इदारों की मेहनत का नतीजा है। अब मुसाफिरों के इंतजार का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा। नए मुस्तकिल इमिग्रेशन काउंटर्स की तनसीब, बाकी तामीरात काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का दौरा किया। नए तौसीशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना किया। मुसाफिरों के लिए नए इंतजाम देखे। मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, वफाकी सेक्रेटरी दिफा, सिविल एविएशन, FI और दीगर मुतलका इदारों की मुसलसल दिन रात मेहनत से वसी इजाफी इमिग्रेशन एरिया सिर्फ 15 रोज में मुसाफिरों के लिए
खोल दिया गया। रश के सीजन के पेश नजर मुस्तकिल काउंटर्स की तनसीब का इंतजार किए बगैर FIA ने आर्जी काउंटर्स फौरी तौर पर फाल कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 20 इमिग्रेशन लाइनों के कयाम से मुसाफिरों के इंतजार का दौरानिया नुमाया तौर पर कम और रश को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सकेगा। मुस्तकिल काउंटर्स की तनसीब और बाकी तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को रोकने पर FIA के ASI को शाबाश दी। अफसरान को हिदायत की कि सफरी दस्तावेजात की मुकम्मल जांच यकीनी बनाई जाए, नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत ना दी जाए। माह रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में उम्रे की टिकट बजरिया कुरानदाजी का आखिरी रोज मेगा तकरीब में 12 उम्रे की टिकट बजरिया कुरानदाजी तकसीम की गई। तकरीब में सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में माह रबीउल अव्वल में कुरानदाजी के जरिए 12 खुश नसीबों को उम्रा टिकट्स तकसीम की गयी। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने टिकट बजरिया कुरानदाजी तकसीम किए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि रहीम स्टोर की ये रिवायत काबिल तारीफ है। रहीम स्टोर आपका बहुत शुक्रिया। राना बरादरान, राना राफे हों, चाहे हमारे बुजुर्ग राना अजहर साहब हों, आप तमाम को शाबाश भी है, मुबारकबाद भी है और ढेरों दुआएं हैं कि ये सिलसिला इसी तरह आपकी अगली नस्लों तक चलता रहे और आप लोग जीते रहे और सदा लोगों में खुशियां बांटते रहे। तकरीब में CEO रहीम स्टोर अब्दुल राफे ने सारिफीन का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि रहीम स्टोर इस साल भी रबीउल अव्वल के माह में अपनी उम्रे के टिकट देने की एक्टिविटी को बड़े कामयाबी से सक्सेसफुल तरीके से इख्तिताम पे ले आया है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 11 साल में और इस साल की तादाद मिला के तकरीबन 1000 वो खुश नसीब बन जाते हैं जिनके बजरिया रहीम स्टोर उम्रे के टिकट निकले हैं। उम्रे की टिकट्स मिलने पर खुश नसीब सारिफीन ने रहीम स्टोर के इकदाम को सराहा। सबसे पहले मैं तो अपने रब ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपने वालिदैन का, जिनकी बदौलत आज मुझे अल्लाह पाक ने अपने घर की सादत बख्शी है, और स्पेशली थैंक्स रहीम स्टोर। मैं सबसे पहले अपने बॉस का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे ये टिकट दिया 10 साल की मेहनत के साथ। तकरीब में मारूफ गुलकार आरिफ लोहार, ख्वाजा शाहजेब अकरम, खालिद भट्ट, चौधरी अहमद नवाज, हामिद ताहिर, ताहिर अली शहजाद, बाबर महमूद, राना इमरान मंज, चौधरी आमिर सिद्दीक, बाबर ताहिर, शहजाद अली शाह, राना अजहर अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। रेलवे स्टेशन पर जश्न ईद मिलादुन्नबी की मरकजी तकरीब, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वलियात शख्सियात ने शिरकत की। हम जो है खराजे तहसीन पेश करते हैं कि वो इन बच्चों को जिस महारत के साथ ट्रेन करते हैं तो देखकर दिल खुश होता है। बहुत जबरदस्त तालियां। तकरीब के दौरान बच्चों और बच्चियों ने कराटे और बॉक्सिंग के शानदार मुजाहिरे पेश किए। आप सबकी निगाहें इधर आनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त मोटरसाइकिल गुजार दी गई, बहुत सी तालियां। रस्साकशी और परचम कुशाई की सरगर्मियां भी मुनक्किद हुई। मरकजी सदर तकरीबात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिक परवेज रब्बानी ने कहा कि तकरीब से मुल्क की रैलियों का आगाज होता है। 5000 मरकजी जुलूस लाइसेंस शुदा डाले जाते हैं, वो इसी तकरीब के आगाज के बाद तमाम जगह ये तकारीब शुरू हो जाती हैं, और इस सिलसिले में 50,000 महफिल मन्नात का इनकाद भी इस तकरीब के बाद होता है, जो 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में पूरा महीना चलती हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर तकरीबात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल रजा ने बताया कि तकरीबात का मकसद इश्क रसूल का फरोग है। सरकार की खिदमत कर रहे हैं, आशिकान रसूल की। आज जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जुडो, कराटे और बॉक्सिंग के, रस्सा कशी का, हमारे जो मेहमान खुसूसी वो भी आए हुए हैं, तो ये सरकार की बस खुशी में ये दिन मनाया जा रहा है। शुरका की तवज्जो का मरकज घोड़ों का दिलकश रक्स भी रहा, जिसने तकरीब को मजीद खूबसूरत बना दिया। बहुत ही जबरदस्त ढोल वालों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, इनके लिए भी तालियां बजाई हैं ढोल वालों के लिए। बच्चों ने कहा कि तकरीब से हौसला अफजाई होती है। हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, हमें कॉन्फिडेंस हो रहेगा कि गेम कैसे करनी है कैसे नहीं, और हमारे सर का शुक्रिया हमें लेके आए हैं। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, हर साल में होते रहते हैं इवेंट्स, लेकिन बहुत अच्छा इस बार इन्होंने किया है कि सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स आए देखने के लिए अपने बच्चों को। तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंजूर इलाही, चेयरमैन नून लीग लेबर विंग लाहौर अशरफ नदीम भट्ट, सैयद जुल्फिकार शाह, सैफ मुश्ताक चौधरी, भगत लाल और असगर विल्सन समेत दीगर मौज़िज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। अरबाज खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।